Hello class 11th. Let's continue chapter 1 sets. Okay, till now you have learned what is a set, how to denote a set and how to represent a set. Now next we will be learning kinds of sets which are empty set, finite and infinite sets, equal sets, subset of a set, power set and universal set. In this video we will be covering first two, empty set and finite and infinite sets. So let's start with the empty set. A set which doesn't contain any element is called the empty set or the null set or the void set and is denoted by the symbol phi or curly braces without any element, right? मीन्स एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है, कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है, एम्प्टी सेट कहलाता है या नल सेट भी बोल सकते हैं, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं. You can see here examples. First is set A is equal to x such that x is a rational and irrational both. So there is no such number which is rational and irrational both. दोनों में बिल्कुल both are different. Okay, so it will be an empty set equals to 5. Next is x such that x is a student studying in both classes 11th and 12th. Again not possible, so it will be empty set again and will be equals to 5. Next is finite and infinite sets. A set which is empty or has a certain or definite number of elements called finite, otherwise the set is called infinite. Certain or definite means fixed और यू कैन से काउंटेबल, काउंट कर सकें जिसके एलिमेंट्स, उसको फाइनाइट सेट की कैटेगरी में डाला जाएगा एंड जिसके एलिमेंट्स काउंट नहीं हो सकते वो इनफाइनाइट सेट होगा, राइट. जो भी स्टैंडर्ड सेट्स हैं हमारे, नेचुरल नंबर का सेट्स, नेचुरल नंबर्स का सेट, होल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स, रैशनल्स, irrational numbers, real numbers, they all are infinite sets because we don't know how many elements are there, so uncountable number of elements, so infinite sets. Now you can see here example. Number 1 is let P be the set of months of the year. We all know that there are 12 months in a year. Countable है, that means it will be finite. Let Q be the set of points in a plane. एक plane में आप कितने भी points plot कर सकते हैं, infinitely many, कितनी भी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, कितने भी सर्कल्स, कोई भी फिगर हम इनफाइनाइट नंबर में ड्रॉ कर सकते हैं. दैट मीन्स इट इज़ इनफाइनाइट बिकॉज अनकाउंटेबल. Okay, there are few points to recall. If set A is equal to x such that x is a letter of the word success. ये यहाँ पे इसलिए लिया है क्वेश्चन को यहाँ पे क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका वर्ड फॉर्म में आता है सक्सेस लाइक, तो इफ़ सम लेटर इज़ रिपीटिंग लाइक हेयर एस इज़ रिपीटिंग 3 times, सी इज़ रिपीटिंग 2 times, बट जब आप उसकी रोस्टर फॉर्म, उसको सेट की फॉर्म में लिखोगे, ये सेट बिल्डर फॉर्म था, रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो एस विल अपीयर ओनली वंस, सी विल अपीयर ओनली वंस, राइट. मतलब रिपीटेशन का कोई इसमें यहाँ पे रोल नहीं है, आपको सिंगल टाइम ही लिखना है, एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा, एक ही बार काउंट होगा. ओके, एंड वन मोर थिंग, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजेंट मैटर. अगर आप यहाँ पे इसको यू कोमा एस कोमा सी कोमा ई कुछ भी आगे पीछे लिखते हैं तो अगेन विल बी सेम. ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजेंट मैटर इन सेट. Okay, next is set of rational numbers. How we represent, how we write set of rational numbers. As I told you earlier, we cannot write rational numbers, real numbers and irrational numbers in roster form. But set builder form में हम लिख सकते हैं. In list form we cannot write because we don't know what number will come after a given rational number or after a given real number, and we all know that there are infinitely many rational numbers, many real numbers between two real numbers or between two rational numbers. Okay, so how to write them in set builder form? Q is the standard letter for the rational, so Q is equal to x such that x is a rational number. Simply you can define that कि वो कौन से टाइप का नंबर है. ओके, नेक्स्ट, और हम इसको लिख सकते हैं such that x is equal to p by q such that q is not equal to 0 and p and q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स. प्रॉपर रैशनल नंबर की डेफिनेशन दे दी हमने, तो इससे क्लियर हो गया कि ये इसमें कौन से नंबर्स आएंगे जो रैशनल नंबर्स होंगे, राइट. नेक्स्ट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स. अगेन सिंपली यू कैन राइट x such that x is a real number. Okay, so next is, let's start exercise 1.2 with the question number 1. Which of the following are examples of null set? So first part is set of odd natural numbers divisible by 2.
ऑड नेचुरल नंबर्स की क्या डेफिनेशन होती है? नॉट अ मल्टीपल ऑफ टू, नॉट डिविजिबल ऑफ टू, जो टू से डिवाइड नहीं होते हैं. इवन नंबर्स टू से डिवाइड होते हैं बट ऑड नंबर्स टू से डिवाइड नहीं होते हैं. तो इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा. दैट मीन्स ये नल सेट है. यस. नेक्स्ट, set of even prime numbers. Prime numbers are the numbers which can be divided by 1 or itself. ऐसे नंबर्स जो 1 से या खुद से डिवाइड होते हैं या जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और itself. प्राइम नंबर्स में 1 नहीं आता. 1 ना तो प्राइम में आता है ना ही कॉम्पोजिट में आता है. सो द लीस्ट प्राइम नंबर इज़ 2 और 2 एक इवन नंबर भी है. तो इट मीन्स 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर. तो इस सेट में आपके पास एक एलिमेंट आ रहा है, दैट इज़ 2. दैट मीन्स दिस सेट इज़ नॉट अ नल सेट, नॉट एन एम्प्टी सेट. एक एलिमेंट आ गया उसमें, सो इसलिए यह नल सेट नहीं है. नेक्स्ट इज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन 5 एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 7. इज़ देयर एनी नंबर एग्जिस्ट? नेचुरल नंबर तो क्या कोई भी नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जो 5 से लेस हो और 7 से ग्रेटर हो. दैट मीन्स अगेन ये नल सेट है. Last part is y such that y is a point common to any two parallel lines which never meet. तो point common कहाँ से आएगा? Point common only intersecting lines में होता है. That means again this is a null set. So except second part, all three are null set. Next is question number 2. Which of the following sets are finite or infinite? First part is the set of months of a year. We just did it. There are 12 months, so we can count them, so it is finite. Next is 1, 2, 3 and so on. So on means we don't know how many elements are there, we cannot count. That means second part is infinite. Third is 1, 2, 3 and so on up to 99 and then 100. So if we know the exact number of elements, means there are 100 elements in this set, so it is finite. नेक्स्ट इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100. ग्रेटर देन 100 तो गिवन है. लोअर लिमिट तो बता दी गई है बट हायर लिमिट नहीं बताई गई, अपर लिमिट नहीं बताई गई. हमें नहीं पता 100 से ऊपर कहाँ तक जा रहा है. तो इट मीन्स ये कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट होगा. नेक्स्ट इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99. 99 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सबकी बात की जा रही है. दैट मीन्स 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर. दैट मीन्स वी कैन काउंट देम एटलीस्ट. हम एक सेट कलेक्शन एक बना सकते हैं उसका. तो इट मीन्स ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आ जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इज़ इनफाइनाइट. अगेन सेम क्वेश्चन, फाइनाइट या इनफाइनाइट बताना है आपको. फर्स्ट पार्ट इज द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आपका अगर हम प्लॉट करें तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, तो इज देयर एनी लिमिट? नो लिमिट. कितनी भी लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं. दैट मीन्स इनफाइनाइट सेट. ठीक है. नेक्स्ट इज द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देयर आर 26 elements, 26 alphabets. Everyone knows that. That means it is finite set. The set of numbers which are multiple of 5. 5 के multiples. Start from 5. 5 से start होंगे. 5, 10, 15, 20, 25 and so on. राइट, बट अपर लिमिट नहीं मालूम है. इट मीन्स कहाँ कितने एलिमेंट्स आएंगे वी डोंट नो. दैट मीन्स इट विल बी इनफाइनाइट. ओके, नेक्स्ट इज द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. सो इट इज़ फाइनाइट बिकॉज डोंट गेट कन्फ्यूज कि हम काउंट नहीं कर सकते. एलिमेंट्स एनिमल्स आर ऑल्सो काउंटेड. और ऑल्दो नंबर थोड़ा बिग यानी ज़्यादा होता है तो लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. पॉपुलेशन काउंट की तरह ये भी काउंट होता है. दैट मीन्स ये क्या होगा? फाइनाइट सेट. नेक्स्ट इज द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0. एक पॉइंट से पास होने वाले सर्कल. सपोज ये सर्कल बनाया, इस पॉइंट से पास होने वाला ये सर्कल बनाया. अगर मैं रेडियस ही सिर्फ इंक्रीज करते चले जाएं हम, तो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स फ्रॉम अ गिवन पॉइंट. दैट मीन्स अगेन इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट. ओके.